Okay, so good morning, each and everyone present over here. Our principal ma'am, our manager sir, our teachers, our secondary teachers, our primary teachers, and all the extra teaching staffs and members, those who are attending these meetings, I welcome you all very heartfully and very gracefully. So, as we are continuing our in-house training, so that it's the time for a new session with a new resource person, that is Mr. Dharmendra Prasad Singh sir. So we all know that the person who is with us today is a very delightful, very courageous and very smart working person. He knows how to explain, he knows how to interact, he knows how to give the points what we know or what we should require. So here once again I today personally with a heartful thanks I invite Mr. Dharmendra sir to come and start the today's topic, today's training, that is with the topic methods of teaching. So I would request each and everyone to welcome Mr. Dharmendra sir with a very round hand of applause. The dais is yours. ID number 1409730. Your resource person for today's training on the topic. आज मैं टीचिंग मेथड के संबंध में की बातों को पूछकर उसे समझाना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करना चाहिए ताकि बच्चा हताश ना हो। उसे और समझाना चाहिए, सरल रूप में समझाना चाहिए। यदि बच्चा नहीं समझ रहे हो तो वहां पर प्रैक्टिकली समझाना चाहिए। या याददाश्त में कमजोर है, उन्हें दोबारा समझाना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली रूप में समझाना चाहिए। इस प्रकार से 5वां पॉइंट है, बच्चों द्वारा बोर्ड पर चित्र द्वारा संकेत बताकर हमें समझाना चाहिए। चित्र के द्वारा समझाने से बच्चा का याददाश्त बढ़ता है, अधिक सीखता है, लर्निंग का जिज्ञासा ज्यादा होता है। इसलिए हमें बच्चों को बोर्ड के द्वारा, बोर्ड की सहायता से हमें चित्र के माध्यम से उसको समझाने की जिज्ञासा अपनाना चाहिए। तो आज मैं बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग और लर्निंग ऑफ टीचिंग के बारे में मैंने बताया। अब मैं अधिगमन के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। अधिगमन क्या है? ये भी एक लर्निंग है। इसके द्वारा बच्चा आसानी से सीखता है। शिक्षक को क्लास में इसका उपयोग करना चाहिए। इसके उपयोग करने से बच्चा अधिक सीखते हैं, उनको याददाश्त अधिक रहता है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना अधिगमन या सिखाना कहलाता है। हम सरल रूप को अपनाकर बच्चों के बीच ज्ञान बांटें तो बच्चा अधिक सीखेगा। इसी विधि को इसी विधि को हम सिखाना कहते हैं। हमारे जीवन में जो भी क्रिया या व्यवहार होता है, अच्छाई का व्यवहार हो या बुराई का व्यवहार हो, उसे देखकर लोग सीखते हैं, उसे हम सिखाना कहते हैं। तो हमें एजुकेशन लाइन में बच्चे को चाहेंगे अच्छे से अच्छे बातों को सीखें
अपना व्यवहार अच्छा बनाए, जहां से भी बच्चों को नवीन ज्ञान का आधार मिलता है वहां से वह नकल कर बच्चा सीखने का प्रयास करता है। तो बच्चों को सीखने के लिए अधिगमन के साधन बहुत से हैं, जिसकी चर्चा हम आगे आपके बीच करूंगा। लेकिन मैं पहले जो कुछ भी मैंने बताया बेसिक प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के बारे में, तो इसके बारे में कुछ लोगों से मुझे प्रश्न है या अपना अपना विचार यहाँ विमर्श करें। ऐसे आज जो कुछ भी मैं बताया बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग या लर्निंग ऑफ टीचिंग, इसके संबंध में मंच पर सुधीर सर आकर कुछ अपना विचार विमर्श करेंगे। I, Sudhir Kumar Singh, I am going to address the topic method of teaching. Method of teaching is the best tools of teacher. Without its tools, a teacher cannot give anything to the students. So, there are so many methods announced by the conductor. If this method is used in the classroom situation, then teaching will be very effective and fruitful. Thanks. अब मैं शिक्षण विधि के विशेषताएं के संबंध में दीपक सर से कुछ चर्चा करने की सलाह देता हूं। तो आइए दीपक सर। I am Deepak Kumar, faculty of Mother Teresa Diamond Cross English School. Designation TCT Math Teacher ID 1570669. According to my point of view, there are different type of teacher having different type of teaching method. Like normally, when teachers enter in the classroom, there are so many types of method used by the teacher for teaching the student, like by using the books or by using the boards, normally by using a smart class or practical labs, many more things. After that, I want to say, in earlier time, the teaching method is not so good according or comparison to the 21st century. Normally, in previous years, teacher used only books and they explain those things that is only written in the books. Now at that time, teacher shows the student by the practical way. Normally, if I can say an example, normally in science, previously teacher only said that when an acid reacts with base, salt is formed. Now at that time, teacher shows experiment, teachers help the science lab and make the salt
normally in the reaction of acid base. So today's method of teaching is so effective as comparison to the previous study method. That's all. Thank you. अब मैं अरुण सर से मैं शिक्षण विधि के बारे में कुछ विचार रखने के लिए सलाह देता हूं। मैं अरुण कुमार मदर टेरेसा करेंट ट्रस्ट की फैकल्टी के रूप में आज शिक्षण विधि की विशेषता को अवलोकन करवाने के लिए, जैसा कि हमारे सहयोगी शिक्षक आदरणीय धर्मेंद्र सर अपने वक्तव्य में बताया कि शिक्षा वह निधि है जिससे अपने बच्चों को हम सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यदि सैनिक के पास कोई हथियार न हो, यदि सैनिक के पास किसी प्रकार का अस्त्र न हो, तो वह किसी भी युद्ध को सही ढंग से नहीं जीत सकता। उसी तरह हम शिक्षक जब हम किसी वर्ग में प्रवेश करते हैं तो अपने बच्चों को सर्वांगीण विकास हेतु उसका कुछ न कुछ ऐसा कार्य, कुछ न कुछ ऐसा चीज देखते हैं, उसमें ऐसा विशेषता बढ़ना चाहते हैं ताकि वह विकास कर सके। तो उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स है शिक्षण विधि का। उसमें प्रथम चीज है स्पष्टता। अस्पष्टता क्या है? यदि मान लिया कि हम किसी टॉपिक को निर्धारण करना चाहे, किसी टॉपिक को वर्णन करना चाहे, और यदि हमारी टॉपिक या हमारे समझाने की कला में यदि वर्णनात्मक न हो और यदि हमारे समझाने की भाव जो है वह सही ढंग से नहीं समझ पाए बच्चे, तो स्वाभाविक तौर पर जो हम शिक्षा देने जा रहे हैं वो सही ढंग से शिक्षा वह बच्चों में नहीं जाएगा। दूसरी बात है प्रेरणा को जागृत करना। प्रेरणा को जागृत करने का मतलब क्या होता है? प्रेरणा बच्चा जो हमारे आता है वह एक नौनिहाल है। जिस प्रकार एक घड़ा को पीट कर कुम्हार उसको एक नई स्वरूप धारण करवाता है, उसी तरह हम शिक्षकगण बच्चों के अंदर की खामियों को निकालते हैं, उसमें एक ऐसा प्रेरणा जागृत करते हैं, एक ऐसा भाव जागृत करते हैं ताकि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। लेकिन यह मुख्यतः शिक्षक पर निर्भर करता है कि वह जानना हो सकता है कि हमारे बड़ों में सही बच्चे तेज नहीं होंगे, है ना। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हो जो कमजोर होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हो जो कि पूरा सही ढंग से उसका जो हमारे द्वारा बताए गए भाव को नहीं समझे। तो यह हम पर हमारा दायित्व है कि हम उसके सभी खामियों को निकाल कर, सभी बातों को निकाल कर और उसमें एक ऐसा भाव जागृत करें ताकि वह सही ढंग से विकास कर सके। अगला जो टॉपिक यदि आप वर्णन करो तो सर्वांगीण विकास में सहायक। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास का मतलब होता है कि हम शिक्षा का एक ऐसा भाव बढ़े ताकि बच्चा अपना स्वयं विकास कर सके, और जो हमारे या उसका अभिभावक अपने बच्चों में भरना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक राह प्रदान करना चाहते हैं, अपने बच्चों को एक सही गोल, सही जो लक्ष्य प्राप्त करवाना चाहते हैं, उस प्राप्त को करवाने के लिए जब टीचर का दायित्व या शिक्षक का दायित्व है कि उसमें सर्वांगीण विकास में सहायक बने। इसके लिए मुख्यतः उस बच्चों के अंदर में बहुत सारी खामियां होती है, बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो कि बच्चे जो है वह छुपा कर रखते हैं। तो सबसे प्रथम है कि टीचर प्रथम उस बच्चों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए, एक ऐसा व्यवहार करते हुए जिससे कि ऐसा लगे कि वह शिक्षक उसका अभिभावक है, और उसके अंदर की खामियों को जानकर, उसे खामियों को निकलवाकर, और जब खामी निकल जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसका विकास होगा। दूसरी बात है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे चीज हम लोग पढ़ाते हैं और उस पढ़ाने के दरमियान में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे सही ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि उन बच्चों को उन टॉपिक्स, उन चीजों को सही ढंग से बताने हेतु, है ना, उस टॉपिक्स को सही ढंग से वर्णन करते हैं ताकि उस वर्णनात्मक भाव को, है ना, सहजता से शिक्षक अपने अंदर में उद्दीन करे, सीखे, और तभी जाकर क्या होगा कि वह जीवन को आगे बढ़ेगा। अगला चीज है कि शिक्षण विधि में कुछ ऐसी चीज आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कोई ऐसा है प्रारूप, कुछ ऐसी चीज है
जानते होंगे कि बच्चा जो है वो किसी चीज को अनुकरण करना चाहता है और अनुकरण शिक्षा का वो यदि अनुकरण करवाना है तो आप कुछ न कुछ प्रैक्टिकली मतलब प्रायोगिक उसको दिखाइए, समझाइए, और जब प्रयोग दिखाइएगा, समझाइएगा तो स्वाभाविक रूप से बच्चा में विकास होगा। तो यह शिक्षक पर निर्भर होता है। मैंने कई बार बोला कि इट विल डिपेंड अपॉन द टीचर हाउ टू मेक द स्टूडेंट, और यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप यदि आप शिक्षण विधि नहीं जानेंगे, शिक्षण विधि की तरीका नहीं जानेंगे, शिक्षा को जागृत करने का भाव नहीं जानेंगे तो यह बहुत बड़ी चीज होती है। अगला जो टॉपिक्स है, बच्चों को कैसे आप शिक्षा भरना चाहें, कैसे शिक्षा भरना चाहें, उसके लिए बच्चों को उल्लास का भावना का मतलब होता क्या है कि बच्चा किसी टॉपिक विशेष में यदि उसके अंदर में उल्लास का भाव नहीं रहेगा, उसके अंदर में एक अलग भाव सीखने का भाव नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक तौर पर शिक्षण विधि का सही ढंग से अनुकरण नहीं कर पाएगा। तो अनुकरण शिक्षण विधि को अनुकरण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है, शिक्षण विधि में जैसे भरने के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधि, बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो टॉपिक्स है कोई ऐसा है वो आप उसको सही ढंग से समझाए ताकि बच्चा जो है अपना सफल विकास कर सके। लेकिन जब मैंने बताया कि जैसे मान लिया गया कि कोई ऐसा हम पढ़ा रहे हैं महाराणा प्रताप के बारे में, और महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में उनकी वक्तव्य, उनकी जो क्या कला था उसको बताए। जैसे मैं सुभद्रा कुमार चौहान के बारे में यदि पढ़ाता हूँ तो यदि बसंत ऋतु, और उस समय सुभद्रा कुमार चौहान जो है उन्होंने कहा था कि बीनों का कैसा बसंत यह तब था जब भारत को या अंग्रेजों की दास्तान में झपटा हुआ था। उस समय जब हम एक टॉपिक को किसी कोटेशन वाला, जैसे मैं बताऊं कि कहता है कि भूषण तो आप कभी छंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हम तो वीरों का कैसा हो सकता। तो यदि आप इस भाव को सही ढंग से वर्णनात्मक कर दे, सही ढंग से वर्णन कर दे, तो स्वाभाविक तौर पर हमारे बच्चों में वह चीज बढ़ेगा जो कि एक शिक्षक के नाते हम बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी मैं सुधीर सर, दीपक सर और अरुण सर जिसे जो भी बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ टीचिंग इस संबंध में विचार को सुने और अपना अपना विचार विमर्श किए, उसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभिगम के साधन के संबंध में कुछ बातें बताना चाहूंगा। इसके माध्यम से भी तीन साधन आते हैं। पहला आते हैं द्रव साधन, दूसरा आते हैं दृश्य साधन, तीसरा आते हैं श्रवण साधन। तो आइए हम बताना चाहूंगा, इसमें तीन साधन आते हैं। बच्चे को अच्छे तरीका से सरल रूप से हम द्रव साधन के द्वारा भी समझा सकते हैं। इससे समझाने से बच्चों में सर्वनामिक विकास ऐसा होता है कि कभी नहीं भूलता, याददाश्त बना रहता है। पहला है श्याम पट पर भी हम किसी चित्र को बनाकर बच्चे को समझाते हैं श्याम पट के माध्यम से, ताकि वह पूर्ण विकास बच्चों में हो पाए और याददाश्त हमेशा के रहे। अब चित्र बनाकर भी हम समझाया जाता है, हम लोग समझाते हैं। चित्र बनाकर समझाने से भी बच्चा अधिक समय तक याददाश्त रखता है, कभी नहीं भूल पाता। हम मानचित्र का उपयोग करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, प्रतिमा की उपयोग करते हैं और रेखा चित्र का उपयोग करते हैं। इसके द्वारा हम बच्चों को विकास करते हैं
और बच्चा पूर्ण रूप से विकास करता है और याददाश्त उसका अधिक समय तक रहता है, ये भूल नहीं पाता। दूसरा है द्रव्य साधन। द्रव्य साधन में आते हैं आकाशवाणी, ग्रामोफोन, ध्वनि ट्रांसलेटर, स्मार्टफोन। बच्चों को आकाशवाणी द्वारा भी शिक्षा दी जाती है, ग्रामोफोन द्वारा शिक्षा दी जाती है, ध्वनि ट्रांसलेट द्वारा शिक्षा दी जाती है, स्मार्टफोन द्वारा शिक्षा दी जाती है, ताकि बच्चा में सार्वजनिक विकास हो पाए और ऐसी शिक्षा मिले ताकि वह कभी नहीं भूल पाए। तीसरा पॉइंट है श्रवण साधन। श्रवण साधन में आता है टीवी, दूसरा पॉइंट आता है कंप्यूटर, तीसरा आता है रंगमंच, चौथा आता है चलचित्र। हम बच्चों को टीवी के द्वारा भी हम सिखाते हैं ताकि उसका विकास टीवी गति से हो। किसी चीज को टीवी पर देख लेने से याददाश्त हमेशा के लिए बना रहता है, इसलिए टीवी के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। कंप्यूटर के द्वारा भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है ताकि अच्छे ढंग से वह सीख पाए और उसका याददाश्त हमेशा रहे। रंगमंच का भी उपयोग करते हैं और चलचित्र का भी उपयोग कर हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आज मैंने इस मेथड के बारे में बताया और आप लोगों को अधिगमन विधि का भी उपयोग करके मैंने सिखाया। अब मैं अपना विचार के बाद रोशन सर, एनसीटी रोशन सर, के जो शिक्षक हैं वो आकर अपना विचार विमर्श करें। Okay, so thank you Dharmendra sir with this beautiful topic that is method of teaching. जैसा कि हमने देखा, एक शिक्षक जो है जब तक उसके पास किसी प्रकार के शिक्षण की विधि ना हो वह सही मायने में शिक्षक नहीं बन सकता है। और हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों ने ऐसी बातें भी कही हैं कि जिस प्रकार से एक योद्धा को युद्ध लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक को शिक्षण में संपूर्णता हासिल करने के लिए शिक्षण विधि को जानने की जरूरत होती है। तो आज के जमाने में, आज के इस मॉडर्न जमाने में समय के साथ क्या हो रहा है कि लोग जो है, लोगों में शिक्षण की विधि जो है धीरे धीरे बदल रही है और शिक्षण की शैली भी बदल रही है। आज के डेट में पहले की तुलना में हमारे पास कई ज्यादा शिक्षण सामग्री उपलब्ध है और अब उनकी उपलब्धता को हम कितना इस्तेमाल कर पाते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धर्मेंद्र सर की इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मेथड ऑफ टीचिंग के रिसोर्सेज जो उन्होंने हमें गाइडलाइंस के थ्रू दिया, उम्मीद है कि बाकी सभी जो टीचर्स हैं या जो भी टीचिंग से कंसर्न स्टाफ हैं वो इनका इस्तेमाल करेंगे, अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे और इसका हो सके जितना अधिक से अधिक हो सके उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो जितना आप इस्तेमाल करेंगे इन शिक्षण विधियों की और जितना इनके सामग्रियों की, उतना बेहतर आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उतना आप शिक्षण में बेहतर कर सकते हैं। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरीवन who sat here and listened Dharmendra sir so carefully. So all the best to each and everyone. And अब आपके पास बहुत जल्दी आपके हाथों में आपका असाइनमेंट फॉर्म जाने वाला जो धर्मेंद्र सर ने हमें दिया है, आप उसको फिल कर लें और फिल करने के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आप धर्मेंद्र सर से डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करने के बाद उस फॉर्म को आप हमारे तक सबमिट कर सकते हैं। याद रखिए उस फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट इज अटेंडेंस कम असाइनमेंट कम फीडबैक फॉर्म। तो वो तीनों चीजें जो है आपके एक ही पेज पे है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी भरने का कोशिश करें और समझ करके और उसको सेंड हमें हमारे तक पहुंचाने का कोशिश प्रयत्न करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।